good. Welcome to our EVS Learning. Kids, in today's video, we shall continue with the part 2 of chapter number 11 in the orchard. So kids, let's begin. So kids, let's begin with part 2. Ratan was walking ahead in the orchard. She saw some persons were cleaning grass in one corner of the field. She went there and started pulling the grass. So रतन जो है वो ऑर्चार्ड में चल रही थी, घूम रही थी, ओके, और उतने में वो देखती है कि कुछ लोग जो है वो ग्रास को क्लीन कर रहे एक कॉर्नर में फील्ड के. सो वो भी वहाँ पे गई और उसने भी ग्रास को पुल करना शुरू कर दिया. डू यू नो व्हाट हैपेंड? Her soft hands become red because of pulling of grass. While pulling grass, many roots also came out. So आपको पता है फिर क्या हुआ जब उसने ग्रास को पुल किया? उसके जो सॉफ्ट मुलायम हाथ थे वो रेड हो गए और पुल किया उसने ग्रास को, तब ग्रास के साथ साथ रूट्स भी बाहर आ गए. Now kids, can you tell that every plant has roots? Yes, every plant has roots. What is the function of root? So the main function of the root is to give support to the plant. Now look at some trees and plants near you. How deep and wide its roots are. Imagine. So कुछ plants और trees के roots wide और deep होते हैं, किसी किसी के नहीं होते हैं. So I'll tell you. So roots जो है वो tree को support करते हैं ground में firmly खड़े रहने के लिए, right? So कुछ types of plants है, they grow in the soil and each plant has root. These roots go deep into the soil and support the plant by holding it firmly in the ground. Now roots of bushes and creepers are in the first layer of the soil. उनके रूट्स ज़्यादा डीप नहीं होते हैं, ओके. वेरस अगर हम टॉल ट्रीज़ की बात करें तो उनके रूट्स जो है वो बहुत डीप रहते हैं सॉइल में, ओके. ऑल रूट्स ऑब्जॉर्व द वाटर फ्रॉम द सॉइल. When a growing plant is watered, the water reaches its roots and roots absorb the water, okay. Now kids, do you know why do the withered leaves of growing plants become fresh when they are watered? So I told you that when the water reaches its roots, roots absorb the water and reaches the leaves and thus making them fresh once again. Now kids, all plants need regular watering like tulsi, rose, marigold, periwinkle. Also crops grown in fields need regular watering, but tall trees like neem tree, peepal tree, they do not need regular watering because big trees have roots that go deep into the soil from where they get water. There Ratan saw that Ramji Bhai was pulling radish. Ratan asked Ramji Bhai, so he told, beta, these are radish and it is also roots. Now ऑर्चार्ड में रतन जो है वो रामजी भाई को देखती है कि रामजी भाई रैडिश पुल कर रहे हैं. तो रतन जो है वो रामजी भाई को पूछती है, तो रामजी भाई बोलते हैं, बेटा ये रैडिश है और ये रूट वेजिटेबल है जो ज़मीन के अंदर उगते हैं. Suddenly rain started. It was raining heavily with storm. However, the trees were stood still. Suddenly एक भारी बारिश चालू हो गया, स्टॉर्म चालू हो गया, लेकिन ट्रीज़ जो थे वो स्टिल थे. क्यों ट्री फॉल नहीं हुए? वाई डिड द ट्री डिड नॉट फॉल डिस्पाइट ऑफ हैवी विंड्स? इमेजिन वाई? बिकॉज ऑफ द roots. As I told you before that roots support a tree to stand firmly on the ground and that's why the trees did not fall down due to support given to it by the roots. Look at the pictures of the vegetables given below and find out which ones are roots from them. तो ये vegetables के picture है, हमें find out करने कि इसमें root vegetables कौन से है. So carrot is a root vegetable, then radish is a root vegetable and beet is a root vegetable. Now Ratan would have many questions about the plants now. Why she would have questions about the plants now? इतना सारा तो उसने देखा, पर you know what happened? Ratan was surprised. Why she was surprised? She saw the plant growing out from the wall of the school. She was surprised. She thought, how deep the roots of these plants would go? How will the roots get water? तो रतन जो थी वो सरप्राइज्ड हो गई. उसने सोचा कि वॉल में से कैसे एक प्लांट ग्रो हो सकता है, इसके जो रूट्स है वो किधर हो गए
और क्या वो रूट्स को पानी पहुंचता होएगा कि नहीं पहुंचता होगा। सो ऐसे प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं ना वो ज़्यादा डीप नहीं होते, ओके, दे डोंट गो वेरी डीप। और जब पानी या बारिश होती है मॉनसून सीज़न में, उसको मॉइस्चर मिलता है रूट्स को, तो प्लांट जो है वो वहाँ से ग्रो होना शुरू करते हैं। नाउ मोर क्वेश्चंस आर कमिंग इन रतन्स माइंड, हाउ बिग विल दिस प्लांट्स बी। So these plants do not grow very big, okay, they grow as long as there is a moisture in the walls and their roots gets water. Then what would happen to this wall? तो अभी plants grow हो रहे wall में से, तो मे बी moisture जो है वो retain हो जाएगा, तो शायद walls जो है वो weak बन जाएंगे, okay. Now can you tell the name of the plant in the picture? क्या तुम लोग बता सकते हो कि ये कौन सा plant है पिक्चर में? I think it's a peepal tree. किड्स, हम कभी कभी देखते हैं कि जो क्रैक है, ठीक है, वॉल में क्रैक होता है तो वहाँ से भी प्लांट ग्रो होते हैं। सो ऐसा क्यों होता है? सो यू नो, फ्रूट्स और सीड्स ऑफ दिस प्लांट्स आर ईटन बाय द बर्ड्स। तो बर्ड्स जो है ना वो सीड्स खाकर वहाँ पे फेंक देते हैं या यू नो फॉल हो जाती है वॉल के ऊपर, और जिसकी वजह से वो वॉल पे पहुँचते हैं। और अगर वॉल की कंडीशंस गुड होती है तो सीड्स जो है वो ग्रो होना शुरू कर देते हैं। और पता है कभी कभी सीड्स जो ग्रो होते हैं वो बिकॉज ऑफ विंड और स्टॉर्म्स भी होते हैं, बिकॉज विंड और स्टॉर्म्स ऑल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वेयर दे हैव फॉलन टू द वॉल। व्हेन दीज सीड्स गेट वाटर ड्यू टू रेन दे स्टार्ट टू ग्रो, ओके। रतन हैड सीन अ ह्यूज ट्री फॉलन डाउन एट द एज ऑफ अ फील्ड पे रतन ने देखा कि एक बहुत बड़ा ट्री जो है वो एज पे गिर गया है। शी रिकॉल्ड द नीम ट्री ऑफ अ स्कूल, शी कैन सी द डैमेज रूट्स ऑफ दैट ट्री, शी थॉट। सो उसने अपने नीम ट्री को रिकॉल किया, ओके, और वो सोच रही थी अपने नीम ट्री के बारे में जो स्कूल में ग्रो हुआ था। उसने देखा कि रूट्स में कितने डैमेज हो गए, और वो सोच रही है, हैज़ समबडी पुल्ड आउट दिस ट्री और इट फेल डाउन इटसेल्फ। वो बोल रही है कि क्या किसी ने ये ट्री को पुल किया या फिर वो अपने आप ही गिर गया। अभी इमेज को देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी स्ट्रॉन्ग विंड्स या हैवी रेन की वजह से, स्टॉर्म की वजह से वो ट्री गिर गया है। हाउ ओल्ड वुड दिस ट्री बी? ये ट्री कितना ओल्ड रहेगा? सो लुकिंग एट हाउ फार एंड डीप इट्स रूट्स हैव स्प्रेड, the tree seems quite old, okay. How will the tree get water from between the rocks at the edge of the field? So rocks के बीच में से एज ऑफ द फील्ड में ये ट्री को पानी कैसे मिलता होएगा? सो हम देख सकते हैं कि ये ट्री का जो रूट्स है वो एकदम अंदर तक है, डीप है सॉइल में, ओके। सो दिस ट्री में गेट वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स रूट्स फ्रॉम डीप अंडर द सॉइल। Now there are some discussion topics, so let's discuss. Which are the old trees in your area? How old are they? Know from your elders. तो तुम्हारे एरिया में कोई ओल्ड ट्रीज़ होंगे तो कौन से है वो ओल्ड ट्रीज़ और वो कितने पुराने हैं, कितने ओल्ड है। एंड राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स लिविंग ऑन दिस ट्रीज़, और उन एनिमल्स के नाम लिखो जो ये ट्री पर रहते हैं। सो किड्स, आपको पता होगा कि अपनी स्कूल में एक मैंगो ट्री है जो बहुत पुराना है, अराउंड 50-60 ईयर्स ओल्ड होगा। एंड एनिमल्स सच एज आउल, स्क्विरल, क्रो, पैरट एट्सेट्रा लिव ऑन दिस ट्री। हैव यू सीन एनी ह्यूज ट्री फॉलन डाउन? वॉट डिड यू थिंक व्हेन यू सॉ इट? क्या तुमने कभी कोई बड़ा ट्री गिरते हुए देखा है? तो तुमने क्या सोचा जब वो ट्री नीचे गिरा? तो मे बी शायद तुमने देखा होगा, तो शायद ऐसा हो सकता है कि बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड वो ट्री जो है वो गिर गया हैवी रेनफॉल की वजह से, और उसके रूट्स जो है वो बाहर आ गए, ओके, एंड द ट्री गॉट अपरूटेड एंड फेल। मूविंग फर्दर, स्ट्रेंज, फ्रीकी, वियर्ड रूट। ओह, अब हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले। स्ट्रेंज, फ्रीकी और वियर्ड रूट मतलब अजीबो गरीब रूट, ओके। नाउ लेट्स सी व्हाट इट इज। हैव यू एवर स्वंग ऑन बनियन ट्री? क्या आप कभी बनियन ट्री पे झूला झूले हो? स्वंग यानी झूला झूलना। आप यहाँ देख सकते हो बच्चे कैसे झूला झूल रहे हैं। सो यू मे राइट दैट येस आई हैव स्वंग ऑन बनियन ट्री। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड यू होल्ड टू स्विंग? तो जब तुम स्वंग कर रहे थे, झूला झूल रहे थे बनियन ट्री पे, तो तुमने क्या होल्ड किया था? सो यू मे राइट टू स्विंग आई हेल्ड दी हैंगिंग ब्रांचेस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है हैंगिंग कर रहे हो ब्रांचेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू द हैंगिंग ब्रांचेस लुक लाइक? तो ये हैंगिंग ब्रांचेस जो है वो कैसे दिखते हैं? सो आई फील दैट द हैंगिंग ब्रांचेस लुक लाइक दी रोप्स। रोप्स यानी रस्सी की तरह लगते हैं। इट इज़ द रूट ऑफ बनियन ट्री। इट इज़ कॉल्ड
prop aerial roots. सो जो ब्रांचेस, जो हम हैंगिंग ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, जो रस्सी की तरह दिख रहे हैं, वो एक्चुअली बनियन ट्री के रूट्स है, और ये रूट्स को हम लोग एरियल या प्रॉप रूट्स बोलते हैं. इट ग्रोज फ्रॉम द ब्रांचेस एंड टचेस द ग्राउंड. तो ये जो प्रॉप रूट्स होते हैं वो ब्रांचेस से ही ग्रो होते हैं और ग्राउंड तक टच होते हैं. ओके. कबीरवाड़ इज़ सिचुएटेड इन द भरूच इज़ वेरी बिग. सो भरूच में एक कबीरवाड़ ट्री है जिसको बनियन ट्री के नाम से बोला जाता है, और वो नर्मदा रिवर के आइलैंड पे सिचुएटेड है, भरूच में है. वो बहुत ही टूरिस्ट स्पॉट है और बहुत ही सेक्रेट माना जाता है उसको. ठीक है. इट्स प्रॉप एरियल रूट्स आर गिविंग स्ट्रेंथ टू द बनियन ट्री लाइक पिलर्स नाउ. उसके जो रूट्स है वो पिलर की तरह काम करते हैं बनियन ट्री के लिए और उनको स्ट्रेंथ देते हैं. Remember one thing, that the banyan tree has the roots inside the soil like other trees. ये भी चीज़ तुम्हें ध्यान में रखनी है. बनियन ट्री के रूट्स जो है वो सॉइल के अंदर भी है जैसे दूसरे ट्रीज़ को होते हैं. Have you seen prop aerial roots growing from the other trees like banyan tree? बनियन ट्री के अलावा और कोई ऐसे ट्रीज़ है जिसमें आपने देखा हो ऐसे रूट्स को? सो येस, यू मे राइट मैंग्रोव प्लांट्स. मैंग्रोव प्लांट्स जो है वो स्मॉल श्रब्स होते हैं जो ग्रो होते हैं कोस्टल रीजन पे. ओके. मूविंग फर्दर, लेट अस डू एक्टिविटी. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, वो करने को बोला है. सो इस एक्टिविटी में क्या है, तो पहले तो ये लिस्ट दी गई है. ओके. ग्रीन ग्राम यानी मूंग, वीट बाजरा, मस्टर्ड ग्राम और किडनी बीन्स यानी राजमा एंड कॉटन. सो ईच ग्रुप जो है, जो भी ग्रुप करेगा उसको एक ही टाइप ऑफ सीड लेनी है, हर टाइप ऑफ सीड नहीं लेनी है. ओके. और सीड्स को जो है, सोक सम सीड्स द होल नाइट इन अ बोल फिल्ड विद वाटर. सीड को है वो सोक करना है, मतलब भिगो के रख देना है पानी के अंदर पूरी रात. ओके. टेक कॉटन एंड वेट इट. फिर थोड़ा सा कॉटन लेना है और उसको वेट करना है. पुट द कॉटन ऑन द माउथ ऑफ ग्लास. एक ग्लास लेना है और कॉटन को जो है गीला कर कर ग्लास के ऊपर रख देना है. टाई इट विथ रबर बैंड और थ्रेड टाइटली. और फिर उसे टाई करके रबर बैंड या थ्रेड से टाइटली टाई करना है. टेक आउट सोक्ड सीड फ्रॉम वाटर एंड पुट इट ऑन द कॉटन. और फिर वो जो सोक्ड सीड जो आपने भिगोई थी उसको कॉटन के ऊपर रख देना है. टेक केयर दैट कॉटन विल नॉट ड्राई. एक ध्यान में रखना कि कॉटन जो है वो गीला ही रहे, ड्राई ना हो जाए. ओके. ऑब्जर्व द चेंजेस इन द नेक्स्ट 10 to 12 days. फिर जो जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अंदर वो 10-12 डेज़ में वो तुम ऑब्जर्व करो. हैव यू सीन स्प्राउट्स कमिंग आउट फ्रॉम द सीड. क्या तुमने देखा कि सीड्स में से स्प्राउट्स बाहर आ रहे हैं. हाउ आर द जर्मिनेटेड सीड्स आर लुक ऑन द 4th and 8th day. ड्रॉ देयर पिक्चर्स. और ये जो जर्मिनेटेड सीड्स है ये चौथे दिन पे कैसे दिखते हैं और 8वें दिन पे कैसे दिख रहे हैं, तो उनके पिक्चर जो है ये बॉक्स में तुम्हें ड्रॉ करना है. ओके. फिर तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसको तुम्हें यहाँ पे लिखना है. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू ऑब्जर्व द चेंजेस इन द सोक्ड सीड्स, कंपेयर देम विथ ड्राइड सीड्स एंड राइट. व्हाट वुड हैपन इफ द कॉटन गॉट ड्राइड. सो जो चेंजेस तुम लोगों ने ऑब्जर्व किए हैं वो चेंजेस तुम लोगों को यहाँ पे लिखने हैं. ओके. एंड सी दैट यू कंप्लीट दिस एक्टिविटी. ओके. Now next is about what is grown. Arifa and Rupali did the above activity. When asked, they saw the grown grass. What did they grow? They have different idea for the grown things. So ये आरिफ और रूपाली करके दोनों बच्चियाँ हैं, उन्होंने ये अबव एक्टिविटी की थी, ये रूट्स कॉटन वाली. ओके. जब उनको पूछा गया तो उन्होंने ग्रास ग्रो किया, और उनके पास और भी अदर तरीके हैं, आइडियाज़ है जो चीज़ें ग्रो होती है. सो दोनों ने अपनी अपनी लिस्ट बनाई है. आरिफा ने लिस्ट में लिखा है लीव्स, नीम सीड, बड, पप्पी, नेल्स, फिश. और रूपाली के लिस्ट में है मून, ट्री, आई, हेयर, वाटरमेलन, मस्कीटो, ग्रो, एट्सेट्रा. Then they have asked question, what do you think, which things will grow from the list of Arifa and Rupali. So कौन सी चीज़ें हैं जो आरिफा और रूपाली की लिस्ट में है और वो ग्रो होएगी. सो यू मे राइट नीम सीड है वो ग्रो होएगी, बड है वो ग्रो होएगा, ट्री और हेयर है वो ग्रो होएंगे. ओके. नाउ वाई डोंट यू क्रिएट योर ओन लिस्ट ऑफ थिंग्स विच कैन ग्रो. तुम लोग भी अपनी लिस्ट ऑफ थिंग्स बनाओ जो ग्रो हो सकती है. ओके. you may add things from Arifa and Rupali's list. ओके. आरिफा और रूपाली के लिस्ट में जो भी थिंग्स है वो भी तुम लोग यूज़ कर सकते हो. ओके. नाउ किड्स,
Think of yourself. How many changes come with time in you also? Have you grown in any way? तो तुम्हारे अंदर भी changes होते हैं, right? तुम भी grow होते हो, right? So for example, Does your height increase? How tall are you in the last 1 year? क्या तुम्हारी हाइट इंक्रीज़ हुई है? तो लास्ट 1 ईयर में तुम कितने टॉल हुए हो? तो तुम ये माप सकते हो, ठीक है? अगर तुम्हारी जो लास्ट ईयर की हाइट थी वो 5 इंच है तो तुम शायद 1 इंच और टॉलर हो गए, राइट? इमेजिन दैट यू हैड नेवर कट योर नेल्स. ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर फिंगर्स इन योर नोटबुक शोइंग व्हाट इट लुक्स लाइक. इमेजिन कि तुमने कभी अपने नेल्स जो है वो कट नहीं किए होते तो वो कैसे दिखते हैं. तो तुम अपने नोटबुक में एक पिक्चर बना सकते हो इसका. it's just an activity. So kids, here we end our learning of our chapter number 11 in the orchard. I hope you have gained much more information about the plants, trees, flowers, etc. Kids, whatever activity has been shown in the video, see that you complete those activities. I hope you have understood this chapter very well, and kids, do not forget to plant a tree. As you plant a tree, you plant a new life.